Thank you, Madam. Okay. Okay. Baba. Hi, Baba. Namaste. Namaste. हाँ, इसका शुरू हो गया। शिल्पी, छोटी का नाम क्या? Uncle Amaira. Amaira. अमायरा। वाह वाह। Okay. Folks, for the information of everybody, Janice Kayal deserves to be appreciated a lot because in spite of 2 COVID patients in her home, she is doing this for us. This is called true dedication. Nay, Uncle, thank you so much. It's always a pleasure. शिल्पी, सोनू, आप लोगों को माइक टेस्टिंग करना है? ओके? हाँ, okay. All clear? Yeah. Jay Fazal. Baba. पीछे बोल दो। Baba. Jai Meher Baba, everybody. Jay जय मेहर बाबा। Yeah, Meher Nuri, Jai Baba, GB here. Bhikkhu, Kem che? Bhikkhu, how are you? Jimmy, I think you are breaking up a little bit. Very well, thank you, Jimmy uncle. Your voice is not clear. Yeah, I was saying hello to you. How's the family, Bhikkhu? How's the family? Very well. All well, all well, all well. Thank you Good. so much. Thank you so much. Good, 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 good. Aji. Yeah, Perrin. Hello, Perrin. Hi, Jai Baba. Jai Baba, welcome from Toronto. Thank you, thank you, Jai Baba. Jay Fazal आपने? It's morning in Toronto. Wow, fan 8 o'clock now. in Toronto. Wow. In Toronto, 8 o'clock morning. But the fan is on. Yes, I need that. Well, from the other room, we have got the heat coming. Now So it's the summer in Toronto. Summer's Sorry? coming. Summer's coming very soon. Yeah, but now it is springtime, right? Yes, it is. It is. It is. Yeah. Today we have been getting rain this whole week. Oh, wow. So it's a rainy week. Okay. Yes, but on and off, not too bad. Around Okay. 10 degrees, 10 degrees. So all ready for this morning's beautiful Baba session.
You in Jai this Meher seat? Baba, everyone. I'm sorry to interrupt, Jimmy uncle. It's 5:30. If we can start. थैंक यू पूरी करा दे बड़ी मत दो बेटा कुछ। डिस्टर्ब की बात Sam uncle has some network issue, so I will start with a small prayer and we'll start our program till Sam uncle joins in. Let us all join our hands together to do our beloved prayer. Avatar Meher Baba ki Jai. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, टेल की till बिकम we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's garment till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. चेक So, good evening, everyone, and once again, welcome you all to Avatar Meher Baba Bombay Center's program, birthday evening program with Baba. So, today we have our guest speakers, Sonu. Also, Sonu and Shilpi are the nicknames, and the names are Balindraji and Avantika, right? Okay. Along with their little angel, Maya. So, before we start with our program, मैं आप सबको एक जल्दी से ब्रीफ कर देती हूँ about the every Sunday, as everybody knows, we have this month our Winning His Heart event going on of Bombay Center, and like the first Sunday we had was the Paint His Heart event. Last Sunday we had the Housey, which was really loved by all participants. So this week coming up is Baba Quiz. Now, here we don't need any special knowledge or prior knowledge to take part in this. There is no competition. There is no syllabus. There will be just 3 simple rounds and some simple questions where you just have to keep a paper and pen with you. And we will take you through the questions. So we'll be having 3 rounds. The first round will be the question and answer round. Second round will be a mixed bag round, and third round will be a crossroad round. So all these rounds and all these questions will have 4 multiple choice questions, and you just have to take a paper and pen with you. And when we ask you the question, you guess the answer and you just write it down on a paper. So आपको किसी को बताना नहीं है कि आंसर सही है गलत है. It is only to test yourself. So no competition, only participation, and just to test yourself. So we have this event coming up on this Sunday, which is 18th April at 5:30 p.m. and it will go on till around 7 o'clock. We'll end the quiz also with Baba Aarti, and we request on behalf of Bombay Center, I request all to please take part in this event. Thank you very much. So, सोनू जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम. हाँ जी So I know Sonu and Shilpi from Sevas. So my first Sevas in 2015. आप दोनों volunteers थे, and you had helped a lot in understanding कि सब चीजें कैसे होती है, कैसे चलती है. So Sonu, without doing much delay, I'll hand it over to you. आपके बारे में सब audience को थोड़ा बताइए, and please. So Shilpi, आप sing भी करते हैं. You could sing something also in between, and you can, if you can end with the आरती, वो भी अच्छा रहेगा. ठीक? सोनू, हाँ आप जी please take over. जय बाबा. जय बाबा मैं बाबा से अपना कनेक्शन के बारे में बताता हूँ. मैं मतलब 1993 में मैं बेसिकली वैसे रायबली का रहने वाला हूँ. तो मेरे पेरेंट्स बचपन से नहीं थे, तो मैं आगे की फर्दर स्टडीज़ के लिए मुझे लखनऊ आना पड़ा. तो मैं अपनी नाना की फैमिली में आके रहने लगा. जय बाबा. हेलो. हाँ जी, सुनाई दे रहा है. तो सोनू, आप जब बोल रहे हो तो मे बी यू कैन चेंज द कैमरा टू यू, नहीं तो आपका हाफ ही फेस दिख रहा है.
and then you can shift it back. जी, please continue. We can hear you. हाँ, तो मैं रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ अपने नाना के यहाँ। पेरेंट्स ना होने के बाद में मुझे फर्दर स्टडीज करनी थी आगे की, तो मैं रहने लगा। तो मेरी वाइफ का जो मकान है वो 2 मकान छोड़ के था, जो अभी प्रेजेंटली मेरी वाइफ है। तो मैं इनके यहाँ कीर्तन होते थे ईयरली 20 अक्टूबर को, तो जाता था, गया, खाना पिया, खाया। बाबा से कोई कनेक्शन नहीं था। धीमे धीमे मैं हर एवरी ईयर 93, 94, 95 कर करके ऐसे गया, आया गया, लेकिन खाना खाया, बस बाबा की फोटो देखी, पैर छुए चला जाता था। फिर धीमे धीमे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि 2001 में मुझे लगा कि मुझे बाबा के यहाँ जाना चाहिए। तो मैंने इनकी फैमिली मतलब मम्मी पापा से बोला कि मेरा भी टिकट करा दे, मैं भी मेहराबाद चलूंगा। तो इस तरह से मैं 2001 में पहली बार मेहराबाद पहुंचा। फिर वहां गया भी मुझे मतलब, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण फैमिली से, तो बहुत ज्यादा हम लोग का कनेक्शन हमारा फर्स्ट टाइम बाबा से नहीं हो पाया। पर ये था कि हाँ, मेरे बाबा कुछ तो हैं। आए, दर्शन करके लौट कर आए। फिर धीमे धीमे मेरा शिल्पी में इंटरेस्ट हो गया, मैं लाइक करने लगा। तो लाइक करते करते ये हुआ कि बाबा से कनेक्शन डे बाय डे कुछ ना कुछ होता गया। इस तरह करते करते फिर हमारी शादी 2009 में शिल्पी से हुई। ब्राह्मण फैमिली होने वजह से इंटर कास्ट मैरिज थी, तो बहुत मुश्किलें भी आई, लेकिन बाबा ने सब सॉल्व कर दिया और हमारी एनी हाउ शादी हमारी लोगों की हो गई। इस तरह बाबा ने अपनी फैमिली में मुझे एंटर किया। फिर बीच में 2004 में एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ बाबा का, जो कैसे कनेक्शन हमारा बाबा से डे बाय डे बढ़ता गया। मेरी दीदी का बड़ा बेटा था, मतलब एक ही बेटा उनको, उसको 2004 में थ्रोट में कैंसर हो गया था। फिर तो हमारा अमर तिथि का टिकट था, तो मेरा जाने का बहुत मन था, पर उसका बीच में ऐसा हो गया कि मैं जा नहीं पा रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि आप लोग चलो, मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई मिलता है तो। मैं, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट का टाइम चल रहा था, उसे डॉक्टर्स को लेके इधर से उधर में जाना पड़ रहा था, चेक करना था कौन सा कैंसर क्लियर नहीं हो रहा था। फिर मैंने इनसे बोला आप चलो, फिर मैं देखता हूँ। फिर मैं बाई लकली मतलब ये हुआ, मुझे टाइम मिल गया, तो मैं बाबा की अमर तिथि 31 को होती है, तो 29 को मैं यहाँ पे ट्रेन से निकला। हमारे पास टिकट भी कंफर्म टिकट नहीं थे। बाबा ने हेल्प करी, हमें पूरी एक बर्थ मिल गई जाने के लिए। मैं और मेरा भांजा, वो उस वक्त 17 ईयर्स का था, उसे लेके हम फिर अमर तिथि गए, दर्शन कराए हमने उसको। दर्शन करा के फिर हम लखनऊ वापस आए। फिर मुझे 2 या 3 दिन बाद उसको लेके बॉम्बे जाना था, क्योंकि यहाँ से उसका कैंसर क्लियर नहीं हो रहा था। तो आपका जो रहेजा हॉस्पिटल है माहिम में, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फर्स्ट कीमो उसकी वहाँ पे हुई। करीब हम 15 दिन मुंबई में रहे और बाबा से बस प्रे करते रहे कि बाबा, कोई दीदी का इकलौता बेटा था वो, और उससे कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। और मैं भी तब बहुत छोटा था, बहुत शॉकिंग था हमारे लिए। फिर उसका 15 दिन का ट्रीटमेंट हुआ, फर्स्ट कीमो हुई। फिर हम लखनऊ वापस आए। लगभग 1 मंथ के बाद हमको फिर जाना था बॉम्बे, उसको लेकर नेक्स्ट उसके लिए साइकिल के लिए। फिर वहाँ पे कुछ दिन बॉम्बे रहे। फिर मैं और मेरी दीदी और मेरा भांजा, हम तीनों वहाँ पे मेहराबाद गए, दीदी को दर्शन कराए। भांजा पहले भी कर चुका था, उसने एक बार फिर दर्शन करे। इस तरह से बाबा ने हेल्प करी। धीमे धीमे उसका ट्रीटमेंट हो गया, बॉम्बे से कई दिन चला, ईयर वाइज फिर वो साइकिलिंग बढ़ती गई। अब वो बाबा की कृपा से बिल्कुल फिट है, उसकी शादी भी होगी, एक बेटा है। तो इस तरह से हमारा बाबा से कनेक्शन डे बाय डे होता गया, स्ट्रांग होता गया, और शादी के बाद से तो बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है। तो इस तरह का हमारा ये इंसिडेंट है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे के बारे में आप शिल्पी बताएंगे थोड़ा बहुत। ओके। जी शिल्पी बताइए। जय बाबा सृष्टि। जी जय। हमारी बाबा से कनेक्शन की जर्नी बहुत लंबी है। ये बात है 1982 की। आई वॉज बोर्न इन 1981 और 1982 में नितिन से शायद आप ज्यादातर लोग फेमिलियर होंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ, नितिन दुबे। तो नितिन की मदर फादर आए हमारे घर पे रेंट पे रहने के लिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है शिल्पी, आप बोलते रहिए।
मैं बहुत छोटी थी उस समय, 1 साल की थी। तो हमारा लखनऊ में अपना घर है, पापा मेरे फादर ने बनवाया था, उसमें उनके मम्मी पापा रहने के लिए आए। जब वो रहने के लिए आए तो एवरी सैटरडे बाबा का सत्संग हुआ करता था हमारे घर पे, नितिन के पेरेंट्स करवाते थे। मैं यहाँ पे बताऊंगी सृष्टि की जो नितिन दुबे फैमिली जो है, उनके नाना जी SS दुबे, ही वॉज फाउंडर ऑफ मेहर बाबा इन लखनऊ। बाबा का जितना नाम है, उसका जितना स्प्रेड करा, वो नितिन के नाना जी ने बिगिनिंग करी सबसे पहले यहाँ पर। नितिन की मदर यही लखनऊ में जॉब करते थे, और जॉब के मतलब हमारे घर के पास ही उनका ऑफिस था, तो वहां पे वो रेंट का मकान ढूंढते हुए हमारे घर पे आए। ये शायद बाबा की मर्जी थी कि उन्होंने हमारे घर को चुना। बहुत सारे घर थे जहां वो जा सकते थे। जब उन्होंने रहना शुरू करा तो हर सैटरडे को बाबा का कीर्तन होता था। अभी भी मेरी कुछ ब्लर मेमोरीज हैं। हमारे यहाँ आंगन हुआ करता है, बड़ा सा आंगन है, और उसमें बाबा का कीर्तन होता था। उस कीर्तन में बहुत सारे लोग आते थे, बाबा प्रेमी आते थे, बहुत ही अच्छे अच्छे डिस्कोर्सेज हुआ करते थे। तपेश्वरी प्रसाद जी, जिसको शायद ज्यादातर लोग जानते हो, जिनको उनके प्रवचन हुआ करते थे, गजलें होती थी, भजन होते थे, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट। क्योंकि इतने छोटे थे हम, खुद 1-2 साल के थे, कि बाबा क्या है ये हमें शायद नहीं मालूम था, पर हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। मैं, मेरी बीच वाली सिस्टर सोनी दीदी, जिसको आप लोग सब जानते होंगे, बड़ी दीदी, मेरी कजन सिस्टर्स, हम लोग बाबा के सॉन्ग्स खूब डांस करते थे, बाबा के सॉन्ग्स पे खूब गाना गाते थे, और खूब फिल्मी गानों पर बाबा के सॉन्ग्स बनाया करते थे। उस समय प्रभात फेरी निकला करती थी लखनऊ में एवरी संडे, तो हमें बड़ा इंतजार रहता था कि संडे मॉर्निंग जब आएगी तो खूब जैसे एक जुलूस होता है, खूब ढोलक मंजीरों के साथ बाबा के गाने होते थे, बाबा की आरती होती थी, बाबा की फोटो को लेके जाया जाता था। तो हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। पर हमारे पेरेंट्स का भी उस समय तक बाबा में श्रद्धा थी, पर डेडिकेशन नहीं था, पूरा 100% डेडिकेशन नहीं था। खैर, जैसे तैसे 4-5 साल हम लोग ऐसे बाबा के कांटेक्ट में रहे। फिर 1988 में मेरी बड़ी दीदी जो है, उनकी शादी हुई जून 1988 में। तो शायद मेरे पेरेंट्स ने माना होगा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी, बाबा से बोला होगा, तो हम दर्शन करने मेहराबाद आएंगे। 1989 में मेरी मदर, मेरी दीदी और मेरे जीजा जी, ये 3 लोग मेहराबाद आए, बाबा के दर्शन करे। और जब वो लौटे हैं मेहराबाद से बाबा के दर्शन करके 1989 में, तो मतलब कि दे हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग। उन्हें कुछ भी नहीं उनको समझ में आ रहा था, वो लोग बस बाबा 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 बाबा। और जीजा जी मेरे, जो कि जैसे कि हम लोग क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली होती है, और शंकर जी, दुर्गा जी और ये हनुमान जी की पूजा ये सब होती है। जीजा जी बहुत सालों से ट्यूसडे के फास्ट रखते थे, पर मेहराबाद जाके पता नहीं बाबा ने क्या जादू कर दिया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और वो पूरी तरह से मतलब कि ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ बाबा। फिर 89 की ये बात है, 90 हुआ, 91 हुआ, 92 आया, तो मेरी दीदी को बेटा हुआ। जब बेटा हुआ दीदी को, तो जीजा जी ने कहा कि तुम लोगों को एज अ गिफ्ट हम मेहराबाद लेकर के चलेंगे। हम लोग मेहराबाद आए, मैं और मेरी सिस्टर सोनी दीदी। जब मेहराबाद पहुंचे हैं, तो वहां का जो माहौल था, जो वाइब्स थी, पॉजिटिव वाइब्स थी, और मतलब इट वाज टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, कि हमें मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, मतलब वी वर ऑल मेस्मराइज्ड, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर बाबा, जैसे लग रहा था कि कुछ मैग्नेटिक पावर है, एंड बाबा वाज अट्रैक्टिंग अस ऑल, हम लोगों को खींच रहे हैं अपनी तरफ। पहले हमारे यहाँ, उस वहां से आने के बाद पहले क्या होता था, हमारे यहाँ मंदिर में सारे भगवानों की फोटो हुआ करते थे। फिर 89 के बाद क्या हुआ कि मंदिर को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में कर दिया। एक पार्ट में और जितने देवी देवता थे, एक शेल्फ पे वो रहते थे, और एक शेल्फ पे बाबा की फोटो रहती थी। बट फ्रॉम 92 ऑनवर्ड्स पता नहीं क्या बाबा ने मोटिवेट करा, क्या आया कि हमने जितनी भी हमारे मंदिर में और फोटोज थी वो सब हटा दी, और सिर्फ बाबा की फोटो और बाबा की मेहर दर्शन हम लोग पूजा करने लगे। उसके बाद आया 2001। 2001 was first young adult sevas, तो we got the opportunity। बहुत सारे फॉर्म्स आए थे ऑल ओवर वर्ल्ड से, बट बाबा had chosen us to be part of that।
हम लोग गए, बहुत इंजॉय करा, बाबा के और क्लोज आए और बाबा की एक्टिविटीज के बारे में जाना, बाबा के सर्विस प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करा, एंड वी स्टार्टेड हैविंग मोर एंड मोर इन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद बाबा। 2001 में ही मेरे हस्बैंड, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला होगा कि आंटी मैं भी चलूंगा बाबा के दर्शन करने। कुछ इन्होंने भी बाबा से प्रे करा था और शायद बाबा ने उसको सुन लिया था, तो इन्होंने बोला कि मैं भी चलूंगा दर्शन करने। तो ये भी मेरा बात गए, एंड जस्ट एज नेबर वी ट्रीटेड हिम, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। फिर बाबा के दर्शन करे, बाबा के दर्शन करके आए। उसके बाद 2002 सहवास में ही वो देर ना, हाँ, he was there in 2002 सहवास, हम भी थे, 2003 सहवास थे। It was his will, we came closer and closer, and marriage was next to impossible in our Hindu, मतलब in Brahmin family, he is Brahmin and I am Kayast। तो मेरे पेरेंट्स तो खैर मान गए थे, पर इनके यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। और सृष्टि, मैं ये बताऊंगी कि कई बार ऐसा हुआ कि हमारी इनकी लड़ाई हुई और ये हुआ कि शादी हो ही नहीं सकती, मतलब इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और 2 बार ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरी लड़ाई हुई उसके नेक्स्ट डे मेरी मम्मा एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। एंड मतलब जब भी ऐसा हुआ मम्मा एडमिट हुई तो फिर ये आ जाते थे, फिर मम्मा की केयर करने लगते थे, फिर सब चीज कैचअप हो जाती थी। ऐसा 2 या मुझे लगता है 3 बार ऐसा हुआ। तो बाबा की मर्जी थी कि ही वांटेड अस टू बी टुगेदर। और फिर धीरे धीरे करते करते 2009 में 8 मेरी एंगेजमेंट हुई। और बस ऐसा लग रहा था कि मम्मा मेरी केवल मेरी एंगेजमेंट के वजह से थी। मेरी एंगेजमेंट के ठीक 1 वीक बाद मेरी मम्मा की डेथ हो गई। 12 December we got engaged and 20th December she died. It was really very hard time for us. फिर 2009 में मेरी शादी हुई और मतलब मुश्किलें जैसे एक के बाद एक आ रही थी। शादी हुई तो थोड़ा सा बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ, इनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। 2010 जनवरी में माय फादर एक्सपायर्ड। इट वाज वेरी 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 टफ टाइम फॉर अस। केवल बाबा ही थे जिन्होंने हम लोगों को एकदम मतलब संभाल के रखा हुआ था, पेशेंस दिया हुआ था। और मतलब years passed and situation did not change for next 4-5 years. फिर मेरा मतलब इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। बहुत ट्रीटमेंट हुआ। लखनऊ का मतलब वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट चला है और कुछ भी मतलब मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं निकली मेरी, बट इट वाज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। बहुत ट्राई करा, बहुत दुखी होते थे। एंड मैं क्या बताऊं, मैं बाबा से लड़ाई करती थी बहुत ज्यादा कि बाबा सबकी सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं। मतलब आई यूज्ड टू कंप्लेन, आई यूज्ड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम, बट लगता था सुनते ही नहीं है बाबा, सबकी विशेष पूरी करते हैं, मेरी क्यों नहीं सुनते हैं बाबा, क्यों नहीं सुनते हैं बाबा। फिर मेरी सिस्टर दिल्ली में जो है सोनी दीदी, उसने मुझको बोला कि तुम कारा में अप्लाई करो। कारा इज चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इट इज ऑथोराइज्ड डिपार्टमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। We applied there in 2018, 14 Feb 2018। उसके पहले मैं बताऊंगी कि मैंने अपना टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया, मतलब जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं बेबी से रिलेटेड, IVF, IUI, एवरीथिंग वाज डन एंड द रिजल्ट वाज 0। कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, शायद बाबा नहीं चाहते थे। बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, डिसहार्टेंड थे, लेकिन बाबा की मर्जी के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है। फिर हमने कारा में अप्लाई करा। कारा में अप्लाई करा तो 1 साल बीता, 2 साल बीता, कारा में भी कुछ नहीं हुआ। वेटिंग हजारों में, थाउजेंड्स में रही। अब लगा कि कारा से भी लगता है बाबा चाहते ही नहीं कि हमको बेबी हो, मतलब हमें बेबी मिले, हम पेरेंट्स बने। और बहुत सारे लोग, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो बहुत सारे लोग बहुत सारी एडवाइस देते हैं, यहाँ से बेबी ले लो, वहां से बेबी ले लो। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। 2019 में मुझको किसी ने बताया कि एक बेबी है जो कि मतलब पेरेंट्स देना चाहते हैं। तो वी वर सो डेस्परेट फॉर बेबी कि हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, एंड वी पैक्ड एंड गॉट आवर टिकट्स डन, और हम चले गए। उत्तराखंड की बात है, हम वहां चले गए। जब हम वहां पहुंचे हैं एंड वी हैड टेकन एवरीथिंग विद अस कि बेबी, बस बेबी हमको मिल ही जाएगा। जैसे ही हम वहां पहुंचे, टिकट कैसे कैसे तत्काल में करा वरा करके,
जैसे ही हम निकल रहे थे होटल से बेबी को लेने जाने के लिए, उधर से फोन आया कि उसके फादर ने बेबी के बैकआउट कर दिया है कि मैं अपना बेबी नहीं दूंगा। अगेन सेम सिचुएशन, आई स्टार्टेड क्राइंग और कंप्लेनिंग एंड यू नो बाबा से लड़ाई करना और ये सब शुरू कर दिया कि क्यों बुलाया फिर हमको, क्यों ऐसे करा, ऐसे ना करते, इतनी होप क्यों दी बाबा ने हमको। खैर सब कुछ करके वी केम बैक। फिर कारा की वेटिंग चेक करी, इट वाज अगेन इन थाउजेंड्स। फिर अभी बात है लास्ट ईयर 21 सितंबर की। हम लोगों क्या होता है कि सितंबर में श्राद्ध के दिन माने जाते हैं, अगर आप लोग को पता हो, मतलब 15 days फॉर आवर फोर फादर्स हु आर नो मोर। तो वही दिन चल रहे थे वो, और आई वॉज क्लीनिंग पिक्चर ऑफ माई मदर। मैं अपनी मम्मा की फोटो को साफ कर रही थी, और मैं साफ करके मैं आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं खूब रोई और मैंने बोला मम्मा से कि मम्मा तुम क्यों चली गई। I started crying। और उसके बाद जैसे ही मैं चाय बनाई मैंने, और मैं कमरे में आई मैंने अपना फोन ऑन करा, फोन मेरा ऑफ था उस समय, और जैसे ही मैंने फोन अपना ऑन करा, उधर से मैसेज आया कारा का गवर्नमेंट की तरफ से कि यू आर सेलेक्टेड, द प्रोफाइल ऑफ चाइल्ड हैज बीन रेफर्ड। मतलब आई वॉज स्पीचलेस, मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैंने तुरंत अपनी सिस्टर को फोन करा दिल्ली में, मैंने उसको बोला तुम मेरा चेक करो नंबर, उसमें पासवर्ड होता है, आईडी मिलती है। उसने चेक करा तो ये अमायरा थी उसमें, छोटी सी बिल्कुल, और बाबा ने इनको चूज करा था हम लोगों के लिए। और हाँ, इट वॉज 21 सितंबर। और जब इनका सब हमने प्रोफाइल मैचिंग करी, फिर उधर से मैसेज आया कि आपकी प्रोफाइल मैच कर ली गई है एंड यू आर सेलेक्टेड फॉर द बेबी। तुरंत ही हम लोग निकल पड़े देहरादून के लिए। फिर देहरादून गए, फिर वहां पूरा जैसे मतलब कि जो हम पहले जब गए थे बेबी के लिए, जिसके फादर ने बैकआउट कर दिया था, इट वॉज टोटली इलीगल। और ये जो कारा के थ्रू बेबी हमको मिला, ये पूरा गवर्नमेंट प्रोसीजर था, बिल्कुल लीगल था, इसमें किसी भी तरीके का डर नहीं था, कोई चाइल्ड ट्रैकिंग नहीं इन्वॉल्व थी, कुछ भी नहीं था। तो इट वॉज बाबाज विल कि हमको जो भी बेबी मिले वो बिल्कुल सही तरीके से मिले और फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वही वाली बात है कि बाबा जो भी करते हैं वो तब नहीं करते जब हम चाहते हैं, बाबा तभी करते हैं जब वो हमारे लिए सही होता है। इसलिए नेवर कंप्लेन बाबा, always be thankful to him, whatever he has given, whatever he has done, whatever he is doing for us. Jai Baba. Shilpi, how old was Amaira when you first got her? Uncle 6 months. She was uncle 6 months old. हाय शाबाश। और अभी कितनी है? Uncle 1 year. वाह। Months. अभी लास्ट मंथ अंकल इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था उन्होंने 10 मार्च को। शाबाश शाबाश। तो अंकल द बेस्ट पार्ट ये है कि हमें मतलब जो जहाँ से मिली है वो देहरादून, तो बाबा का वो धाम, बाबा का धाम है। तो हमने जब इनको पिक किया तो सबसे पहले कुछ भी ना इनकी बॉटल ली ना इनका कुछ लिया। We did not do any preparation, क्योंकि पहले अंकल इतना हमारे साथ धोखा कि मिल करके नहीं हो पा रहा था, तो we were hopeless। तो हमने कुछ भी करा। As soon as we got her, we directly went to Dehradun center। शाबाश। हाँ। सेंटर गए, वहां पे आंटी थी वहां पे, उनसे उन्होंने थोड़ा सा मिल्क दिया हमको, कटोरी चम्मच दी, वी फेड हर। और फिर उसके बाद मार्केट गए, इनकी बोतल खरीदी, इनका मिल्क पाउडर, मतलब पहले बाबा से ये मिली, उसके बाद इनका कोई भी काम हुआ। So, सेंटर का दूध पी के फिर शुरू काम किया। हाँ जी अंकल जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बलेंद्र जी आप बोलिए, अभी आपकी क्या कहानी है? हमारी यही कहानी है, साथ साथ चल रही है हम लोग की। बस बाबा की बस यही वजह बताया ना कि इन्होंने शादी के बाद हमारा सारा बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गया, सब खत्म हो गया। जैसे कहते हैं ना कि फर्श पे आना, तो बिल्कुल फर्श पे आ गए थे। पर इनके साथ की वजह से और बाबा की वजह से हिम्मत बनी रही। हम लगभग 2 से 3 साल तक लगातार स्ट्रगल करते रहे कुछ ना कुछ करने के लिए। कुछ भी मतलब चल नहीं रहा था, पर ये था कि बाबा का साथ था और इनका साथ था, तो लगे रहे।
फिर बाबा ने मुझे, मैंने बताया था आपको कि मैंने रियल एस्टेट का मैं बिजनेस करता हूँ। जी जी। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला यार तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम इसको ज्वाइन करो, हो सकता है आप कुछ जगह होगा। और कैमरा में आइए, आपका पूरा नहीं, आप हाफ कट हो जाता। बस 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 बस। हाँ। तो फिर मैंने वही अंकल 2011 में रियल एस्टेट ज्वाइन किया। तो पहले तो मैं किसी के अंडर में काम करता था, फिर धीमे धीमे मैंने अपना स्टार्ट किया। वही अच्छा। है कि बाबा सब कुछ करते हैं, तो जब स्टार्ट किया तो फिर मैंने बहुत अच्छे से काफी मेहनत करी और बाबा ने पूरा साथ दिया। तो मेरा एकदम से बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल एकदम होता नहीं, हाइप कर गई हर चीज। हम्म। तो आज की डेट में मतलब बाबा की वजह से, पूरी मेहनत से आज बिल्कुल लेवल पे पहुंच गया और ठीक काम चल रहा है हमारा। अभी कितना देखे नोटबंदी या ये बार बार कोरोना आ जा रहा है, बट अपना काम धीमे धीमे रन कर रहा है। तो ये सब बाबा की वजह से, बाबा मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी कर रहे हैं सब बाबा कर रहे हैं अंकल। अभी आप मिलियनेयर बन गए कि नहीं? अभी मेरी हेयर तो नहीं बन गया, पर हाँ रास्ते पे है, ऑन द वे है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको कैसे कन्विक्शन हुआ कि मेहर बाबा भगवान है, अवतार है? अंकल शादी, मेरी शादी मतलब एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है मेरे लिए, क्योंकि शादी अगर बाबा नहीं चाहते तो मेरी शादी भी नहीं हो सकती थी। हम्म उनके चाहने की वजह से शादी, वरना मैं कितनी भी कोशिश कर लेता मेरी शादी मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी कि हो ही नहीं सकती थी। हम्म। तो एक तो सबसे बड़ा इंसिडेंट यही है कि शादी मेरी बीच में मेरे भांजे का था, उसका ट्रीटमेंट हुआ, आज वो रिकवर करके बिल्कुल फर्स्ट क्लास अपनी लाइफ जी रहा है। तो ऐसे बीच बीच में बहुत सारे इंसिडेंट है। प्लस अमायरा अमायरा के लिए मतलब मेरी वाइफ बहुत परेशान होती थी कि यहाँ मंदिर चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, लेकिन मैं हमेशा ये कहता था कि है पेशेंस, जो कुछ भी करेंगे बाबा करेंगे। अगर मैं मतलब मेरी ये मर्जी थी कि अगर मेरा बच्चा आए तो वो बाबा की मर्जी से है, वरना ना आए। शाबाश। तो दिस इज कॉल्ड फेथ। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल 100% फेथ है और हमेशा ही फेथ रहेगा। मैं हमेशा सबसे ही बोलता हूँ कि आप बाबा पे पूरा फेथ रखो, बाबा जरूर करेंगे, समय के हिसाब से करते हैं। हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं होता, पर होता है उनकी मर्जी के हिसाब से और हमारे लिए बेस्ट होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही है। ये मेजर इंसिडेंट है, मेरी शादी, मेरा बच्चा, मेरा बिजनेस, ये सब 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 ओवरऑल बाबा की मर्जी, हमारी कोई मर्जी है ही नहीं। हम्म। मैं तो पूरी तरह से पूरा मतलब डिपेंड हूँ बाबा पे कि मतलब मेरे बिजनेस में भी बहुत सारे राइवल्स हैं, बहुत सारी दुश्मनी पैदा हो जाती है। हम नहीं चाहते कि मेरी दुश्मनी पैदा हो, पर लोग लोग रखते हैं कि हम्म। जहाँ मनी इन्वॉल्व है वहाँ प्रॉब्लम्स तो होती है बहुत ज्यादा। हम्म। लेकिन पापा ने मुझे बहुत बार बहुत तरीके से साइड से निकाल दिया और हम अपना काम धीमे धीमे स्लो स्लोली करते रहे। हम्म। तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है बाबा पे कि मतलब बाबा भगवान है या नहीं, कोई हम डाउट। शिल्पा जी, मैंने सुना है आप गा भी लेते हैं, तो कोई अच्छा सा सुनाइए कुछ। थोड़ा थोड़ा हाँ जी। अंकल, थोड़ा थोड़ा गाते हैं, बाबा बाबा के लिए गाते हैं। गाइए गाइए। अवतार मेहर बाबा की जय। I am the ocean where all have begun. I am beloved sublime. I am the ocean where all finally come. I am the one beyond time. I am the one beyond time. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. Yes, I am the ocean of love. I am the ocean of limitless joy, infinite consciousness too. I am the music that never will cloy. I am the ocean in you. I am the ocean in you. For I am the one who made heaven and earth,
planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of love. I am the ocean of unbroken calm. Infinite bliss I am too. I have been called Jesus and Buddha and Ram, and now Meher Baba by you. And now Meher Baba by you. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. Yes, I am the ocean of love. Drown in my ocean of love. Jai Baba. Beautiful, beautiful, very nice. आपने ये तबला बजाने कहाँ सीखा बॉस? बस ऐसे ही। वेरी नाइस। ये जो सॉन्ग है जी अंकल। इसका असली मीनिंग बहुत ही गहरा है। इट हैज वेरी डीप मीनिंग। जी अंकल। हम लोग बाबा we don't really understand what God is all about. हम लोग कहते हैं कि भाई मेहर बाबा इज गॉड, ये वो वगैरह वगैरह, बट to really understand what Meher Baba is, it is very, very, very difficult. But at the same time, because he is come and lived his life amongst us, and he has chosen us to be his lovers, he himself helps us. आज का जो प्रोग्राम है उसका पासवर्ड मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ओनली लव, बिकॉज दैट इज ऑल दैट ही वांट्स फ्रॉम अस. उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फूलहार, पैसे, ये वो वगैरह वगैरह, नथिंग नथिंग नथिंग. ही डोंट वांट, ही डजंट वांट एनी ऑफ दोस थिंग्स. ऑल दैट ही वांट्स इज सच्चे दिल से प्रेम करे. एंड लाइक बलेंद्र सेड अर्लियर, उनमें पूरा विश्वास रख के चले तो वो हमें अपने मुकाम पे ले जाएंगे. एज पर हिज विश वो हमेशा ले जाएंगे. आई हर्ड कि आपने कुछ हमीरपुर में भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था. सहवास किया था 2019 में अंकल. हाँ, तो आ जाओ मैदान में और बोलो जरा, उसके बारे में बताओ. So सोनू, आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी? एंड आपने I would like to tell you, because I mean, by grace of Baba, I was a participant in that Sehwas, and इन लोगों ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया था. एंड वन डे में they had organized the 4 धाम. तो सोनू, उसके बारे में भी बताइए, क्या क्या आपको चैलेंजेस आई थी. तो आपने पहले ही पूरा ये किया था, जाके पूरा ट्रैवल करके देखा था कितना टाइम लगता है ईच प्लेस में, वन डे में पॉसिबल है कि नहीं. प्लीज ये सब शेयर करिए. जी जी अंकल, हमने 2019 में किया था, मतलब मेहर प्रेम युवा सहवास. हम लोग टीम में 5 लोग थे. आपने सुना होगा राजू जो है, जो वहाँ के केयर टेकर है, राजू, नितिन दुबे, अमित शर्मा और भूषण चौधरी और मैं. तो मेरा अक्सर अंकल, मेरा मतलब सब मेरा बात तो बाबा का मतलब सेंटर है ये मेन, पर मेरा जो ये हम मेहर अस्थाना है मेरा, मैं अंकल बताऊँ, मुझे लगता है मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन वहाँ से है. तो मैं जाता हूँ, मुझे लगता है मुझे कुछ ना कुछ मतलब वहाँ के लिए करना चाहिए, एज पर बाबा लवर या एज पर जो भी है. तो मैं
बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि हम लोग एक सहवास वहाँ भी अरेंज करें। तो मेरी राजू से और भूषण से बात हुई और मेहर मनोहर निगम से। तो भूषण ने बोला भैया कर सकते हैं। फिर मेरे बहुत ही करीबी हम लोग मतलब यहाँ पे मतलब लखनऊ में हम लोग को बोलते हैं ट्रायो, मैं, नितिन और अमित, सहवास में भी हम लोग को मतलब इसी उससे लोग बोलते हैं। तो फिर मैंने इनसे डिस्कस किया यार मेरा करने का मन है, अगर तुम लोग सपोर्ट करो तो फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइज करें। तो इन लोगों ने बोला ठीक है चलो करते हैं। फिर हम लोग फिर वही अपने फोन पे ही मतलब कॉल करके आपस में बात करके सबने प्लानिंग करी मेहर मनोहर निगम से, क्योंकि वो वहीं का लोकल है तो उनसे हम लोग को काफ़ी हेल्प चाहिए होती है। तो उन्होंने बोला आओ। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाना शुरू किया, जाके बार बार 2-3 बार सर्वे किया, अरेंजमेंट देखे कि कैसे, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ बहुत दूर है, जो मार्केट प्लेस है बहुत दूर है, हर चीज़ अरेंज करने में बहुत डिफिकल्ट है, कैसे अरेंज करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग बिजी भी बहुत रहते हैं। नितिन डॉक्टर है, अमित अपनी जॉब में, मेरा बिजनेस खुद का बहुत टफ है, तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल था। पर यह कि बाबा ही चाहते थे तो हम लोग ने बहुत मेहनत करी, लगातार 2 या 3 बार गए वहाँ, सर्वे किया। फिर ये हुआ कि अभी भी बाबा फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेहर अस्थाना के अलावा जो बाबा के 4 धाम है वो दर्शन बहुत से लोग अभी भी नहीं कर पाए हैं। और ना मतलब तो ये हुआ चलो हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे एक चारों धाम मतलब एक साथ एक ही दिन में, क्योंकि टाइम भी कम था, बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे थे, हमें 3 डेज में कंप्लीट भी करना था। फिर हम लोग एक दिन, मैं यहाँ से लखनऊ से कार से गए अपनी, रात में मैं राजू, जो कि भूषण पुणे में था तो उसको आने में दिक्कत थी, वो नहीं आ सकता था, तो मैं अमित नितिन राजू चारों लोगों ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 o'clock पे हम लोग निकले मेरठ थाना से कि हम लोग कवर कर सकते हैं एक दिन में कि नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से गए हमीरपुर से इंगोटा, नौरंगा, और उसी हिसाब से शेड्यूल मतलब करा कि कहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, कहाँ लंच करेंगे, कैसे रात में वापसी हमें करनी है मेरठ थाना की। तो इस तरह अंकल हम लोगों ने ट्राई करके मतलब हम लोगों ने शेड्यूल बनाया, फिर इसका सब हुआ। फिर ये हुआ डेट्स डिक्लेयर हुई, सब 7th 8th 9th 10th अप्रैल सबको 1 to 1 कॉल करके जैसे इन्फॉर्म करके कौन इंटरेस्टेड है आने में, कौन नहीं इंटरेस्टेड है आने में। इस तरह बाबा ने पूरा अपना मौका दिया करने का हम लोग को। और बाबा की इतनी मेहर थी वहाँ पे अंकल की गर्मी का मतलब वो मतलब क्योंकि यूपी बहुत इस वक्त बहुत गर्म रहता है अप्रैल के महीने में, यही डेट थी वही 7th 8th 9th 10th अप्रैल। तो सब ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे आपके बॉम्बे सेंटर से भी लोग आए थे, काफी लोग आए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से, करीब 100 पार्टिसिपेंट थे हम लोग को। बाबा की टी-शर्ट कैप ये सब ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे हम लोगों ने 7th अप्रैल को मतलब एंट्री थी और 8th से स्टार्ट था, 8th 9th 10th। इसमें 9th का जो अप्रैल का डे था उस दिन हम लोगों ने चारों धाम के लिए चुना, बसेस करी, बसेस में भी हम लोगों ने ध्यान रखा कि मतलब किसी को कोई डिफिकल्टीज ना हो। तो उस तरह से 9th की मॉर्निंग हम लोग निकले, चारों धाम करा के रात में लगभग 11 बजे हम लोग सब लोग अपने यहाँ पे हम मेरठ थाना वापस आ गए। और मैं अंकल बताऊं आपको, सब लोगों ने इतना एंजॉय किया, हम खुद भी एक्सपेक्ट करते थे कि बाबा सबको इतना एंजॉय कराएंगे। दिवाली हुई, वहाँ पे हम लोगों ने होली का प्रोग्राम करा, लगभग 100 सहवासी, उसमें बहुत सारे सहवासी ऐसे थे जो ओवर एज की वजह से उनको बाहर भी कर दिया गया था, एज पर मतलब मेहराबाद का जो भी रूल है सहवास का, हम लोग भी उसी में है। और इस तरह बाबा ने मौका दिया और सब ने, आप सबसे फीडबैक दे सकते हैं मतलब कि बहुत बहुत अच्छा मतलब बाबा ने प्रोग्राम किया था वहाँ पर, और सबके उससे मतलब तो काफी अच्छा प्रोग्राम हो गया था। मतलब ये है वहाँ का मतलब का सीन। जैनिस आप गई थी ये प्रोग्राम में? अंकल Yes, uncle. I was a participant और इतना अच्छी तरह से सब रहना, everything जैसे इन्होंने बताया, लाइक इतनी गर्मी थी बट एवरीथिंग इतना स्मूथली हुआ, एंड हर एक चीज इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज की थी। फिर वहाँ पे जो अंकल इफ यू रिमेम्बर, राजू जी एक बार आए थे जहाँ बैठ के उन्होंने हमें बताया था, टूर करवाई थी। हाँ। तो ही वाज आल्सो वन ऑफ दी, एंड वो जो एक ही दिन में 4 धाम जो बोल रहे हैं ये लोग, हर एक जगह एक एक मतलब इतनी डिस्टेंस आउट थी कि आई मीन इफ एज अ लेमैन हम लोग सोचे तो आई थिंक इट वुड नॉट बी पॉसिबल अनलेस बाबा वांटेड टू हैव। तो इतना स्मूथली हुआ था, कोई बीमार नहीं हुआ था इतनी गर्मी में भी।
एंड वहाँ पे जो प्लेस है वो इतनी दूर है, कट ऑफ है फ्रॉम द मार्केट, बट स्टिल किसी चीज़ की हमें कमी नहीं थी। और एंड बेस्ट पार्ट वाज वो दिवाली जैसे हमने मनाई थी वहाँ पे इवनिंग में। तो पूरा जो स्टेयर्स है महलस्थाना का, इफ पीपल नो, वो मेरी तो फर्स्ट विजिट थी महलस्थाना की, बट पूरे स्टेयरकेस पे पूरी लाइट ऑफ करके शाम को वो दिए पूरे रोड, बाबा का जो वो मेन गेट है वहां से लेके महलस्थाना का वो जो स्टेयरकेस है वहां से लेके ऊपर, फिर सुनो आप लोगों ने याद है तो सर्विस प्रोजेक्ट भी रखे थे। हाँ जी, हाँ जी। हम लोगों ने पूरा महलस्थाना का ऊपर का जो, जैसे व्हेन बाबा लवर्स जाते हैं तो यहाँ वहाँ वो कचरा या चॉकलेट रैपर्स फेंक दिए थे, तो वो सब हम लोगों ने लीव्स थे, कांटे लगे हुए सब थे, सब पूरा ऊपर का बाबा की झोपड़ी का जो एरिया महलस्थाना था वो पूरा शाबाश। क्लीन किया था, वो एक प्रोजेक्ट था। फिर पूरे स्टेयरकेस को पानी से हमने साफ किया था, जो भी पार्टिसिपेंट्स आए थे। So it was such an amazing experience, and I think every year का plan था, पर unfortunately 2020 में lockdown की वजह से वो, yesterday only I was talking to Amit, so Amit बोल रहे थे कि मेहराबाद भी जाना है, अभी बंद हो गया है। तो मैंने अमित को एक ही चीज कही कि ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, पर हमारा बाबा का कनेक्शन परमानेंट है, तो ये भी निकल जाएगा जल्दी, तो डोंट वरी। एंड हमारा श्योर महलस्थाना का भी ट्रिप वापस आएगा। तो आपको इसमें क्या क्या अड़चने कुछ आई होगी ना सोनू, ऑर्गेनाइज करने में कि नहीं होने वाला है? नहीं, अड़चने तो आपको बाबा का प्रोग्राम कोई अड़चने तो नहीं आई थी, बट ये कि किसी भी चीज को मैनेज करने में बहुत डिफिकल्टीज बहुत थी। जैसे मतलब आपको पता था रास्ता बहुत वैसा था, एक बार मैं अपनी कार लेके गया तो मेरी कार का नीचे का पूरा वो टूट गया था। ये सब दिक्कतें आई, पर बाबा है तो कोई डर किसी प्रकार का था ही नहीं कि कुछ हो नहीं पाएगा या कर नहीं पाएंगे। और साथ में जितने टीम मेंबर्स थे, ऑर्गेनाइजर थे, सब सपोर्टिव थे, तो बाबा करते चले गए। और आपने देखा कितना बढ़िया कराया था बाबा ने। हम लोगों ने अमर तिथि 2020 में उसकी रिलीज भी करी थी, नया पोस्टर निकाला था मेरा बात में। हाँ, उसकी डेट तक डिक्लेयर कर दी थी 9-10 अक्टूबर 2020 में। बट वही ना कि बाबा जो चाहते हैं वही, उनका अपना प्लान होता है, हमारा अपना प्लान होता है। तो अभी प्लान तो अंकल है, जब भी बाबा मौका देंगे फिर रीस्टार्ट करेंगे। अभी तो इस काल से निकले तो फिर नेक्स्ट क्या करना है सोचेंगे हम लोग। जरूर जरूर। और होपफुली सब निकल जाएंगे अंकल, ऐसा नहीं है। तो बाबा सबको याद दिला रहे हैं कि हम भी कुछ हैं। लोग भूल जाते हैं ना कि लगता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ। बाबा सबको याद तो दिलाए कि मैं ही सब, मतलब हम ही, आप अपने आप को कुछ ना सोचे, सब कुछ बाबा है, बाकी सब सेकेंडरी है। मुझे ये मेरा खुद का ख्याल है कि बाबा वांट्स अस टू रियलाइज के मैं सभी के दिलों में बसता हूँ। हाँ जी। ना ही कि ये सेंटर और ये और वो वहाँ पे है, मौजूदगी है उनकी, दैट इज फॉर श्योर। बट अभी वक्त ये आ गया है कि हमें अपने अंदर भीतर जाके उनको वहाँ पे खोज के, वी हैव टू लुक विद इन, हमारे अंदर जो बाबा का बसते हैं उनको, उनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील पर्सनली। आई डोंट नो अगर आप लोग एग्री होते हो या नहीं, मुझे पता नहीं। नहीं अंकल, आई एग्री। वो तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप कि बाबा तो बस दिल में होना चाहिए। बाबा कहीं ऐसा नहीं कि हम मेहराबाद नहीं जा पा रहे तो हम बाबा से मिल नहीं पा रहे हैं, बाबा को ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, या हम कहीं भी नहीं आ पाते। सबसे बड़ी बात है अंकल, जैसे अमायरा के आने के बाद से हम पहले तो उसे वहां लेके गए। अभी उसकी कुछ हम जब फर्स्ट बार गए थे सितंबर में, तो कुछ फॉर्मेलिटीज उसकी रह गई थी, तो उसके लिए हमें फिर दोबारा जाना पड़ा जनवरी में भी, अभी 21 में देहरादून। तो आपको बताऊं, मतलब वहां गए तो क्योंकि बहुत छोटी थी तो हमें लगा ठंड बहुत ज्यादा है, तो हमें होटल से निकलना नहीं चाहिए। तो शाम का वक्त था, तो हम लोगों ने कहा चलो पास में मार्केट है, तो इनकी बड़ी सिस्टर ने कहा चलो एक काम करो, तुम लोग कहीं मत जाओ, बस मेहर माफी, मतलब वो मेहरधाम दर्शन करा के चले आओ। और हमारा अंकल ये रहता है कि मैं कहीं जाऊं ना जाऊं, अगर मेहर बाबा के आसपास कुछ है तो मुझे सबसे पहले वहां जाना है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो होटल से निकले हम लोग, इलाज चलो, बहुत चूंकि हवाएं बहुत सर्द थी अंकल, वहाँ बहुत सर्दी थी, बहुत ठंड थी।
और इसकी लगातार इसकी नाक मतलब नोज पे प्रॉब्लम थी, कोल्ड बहुत ज्यादा था, कोल्ड एंड कफ। तो निकले मार्केट से, तो मैंने जैसे निकले तो मैंने शिल्पी से बोला, हमने कहा शिल्पी चलो ऑटो करके 10 मिनट चलो वहां दर्शन कराते हैं, फिर कल का कल देखेंगे, क्योंकि हमारी कोर्ट में नेक्स्ट डे डेट थी। उसके बाद अंकल हमको शाम को हमारी टिकट थे दिल्ली के। तो हम लोग ने ऑटो करा और ऑटो मतलब ऑन दोनों साइड का कर लिया। तो उसने बोला चले मैं आपको लेके और छोड़ भी दूंगा। मतलब हमने कोई प्लान नहीं किया, बाबा बुलाना चाहते थे तो हमने गए वहां दर्शन किए और फिर होटल वापस आ गए। कोई मार्केट नहीं, कहीं कोई घूमना नहीं, क्योंकि ठंड बहुत थी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि इसको लेके कहीं बाहर निकले। फिर इसको वहां से करा के दर्शन हम लोग कहते हैं होटल आ गए, खाना खाया। नेक्स्ट डे हमारी इसकी कोर्ट की एक हियरिंग थी, जिसमें मतलब फाइनल हियरिंग थी कि मतलब ये कोरोना काल की बात अंकल फर्स्ट हियरिंग थी, फर्स्ट रिजल्ट था जो देहरादून गवर्नमेंट ने फाइनल किया था। हमारी फर्स्ट हियरिंग थी हमारी आफ्टर कोविड। उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, ले जाते हैं, आने के बाद वो मतलब वो इंटरेस्ट शो नहीं करते, टाइम डेट्स पे आते नहीं। पर हमारा फर्स्ट ये था कि इसका जो भी है फटाफट क्लियर करें। तो हमारा जज ने हमारी हियरिंग ली, इवन वो मतलब किसी को टच नहीं कर रहे थे, बस इस बच्चे को पास में बुलाया, इसको पास से दिखाओ हमें, हम इसको देखेंगे। क्योंकि बाबा की मर्जी से हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से, ये खुद भी बहुत, मैं कहता हूँ ना बाबा अंकल हर तरफ अंकल पूरे टाइम जय बाबा किया करती है घर में। फोटो है सब जगह जय और बाबा, पूरे उठेगी तुरंत उसको पता है कि बाबा की फोटो में जय करना है। तो अगर हम भूल भी जाएंगे तो उठेगी तो सबसे पहले करेगी जय बाबा की, दोनों हाथ ऊपर करेगी, उठ के बोलेगी जय बाबा की। तो अंकल वो जज ने हेयरिंग करी और जज ने कहा आप लोग परेशान हो, मैं आज ही ऑर्डर पास कर दूंगा। और 15 दिन वैसे अंकल सेम डे ऑर्डर फाइनल नहीं करते हैं, बस उन्होंने बोला नहीं आज ही मैं आपको ऑर्डर लिख रहा हूँ और कॉपी आपके घर पहुंच जाएगी। सेम डे में उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया और 1 वीक के बाद उसकी कॉपी हमने रिसीव कर ली। शाबाश। जो मतलब जो इन लोग का रूल है, हम लोग को स्टार्टिंग के 2 या 3 मंथ्स वो हम लोग को फोस्टर केयर में देते हैं कि बच्चा एडजस्ट हो जाए या तो आप लोग एडजस्ट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स मतलब इमोशनल होकर ले जाते हैं, बाद में वापस कर जाते हैं, तो इतना टाइम कोर्ट हम लोग को देता है। तो बाबा की कृपा से बाबा की इतनी विलिंग थी कि जब मैंने फर्स्ट स्टेप में उसको अपनी गोद में लिया था, वो डे 1 से ही हम लोग के साथ मिक्सअप हो गई थी। तो जो हियरिंग हुई हम लोग लेके आए। और अंकल सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, एक इसका बहुत अच्छा इंसिडेंट है। इसने मेरे मोबाइल में स्क्रीन प्ले में सब में बाबा की फोटो कवर लगी हुई है वॉलपेपर में। तो इट वाज 31 जनवरी 2021। इसने मेरा मोबाइल उठाया, बेड पे थी और मोबाइल उठा, क्योंकि मैं बाबा की फोटो देखती जय करता हूँ मैं हमेशा। इसने मोबाइल उठाया और उसने अपने उसमें माथे पे लगाया और बोला जय। 2021। तो ये बाबा की वो है। और इसको हम लोग वहां भी ले जा चुके हैं। अभी दिसंबर में प्लान कराया था, तो हम लोग उसको मेरा थाना भी घुमा लिया। मुझे लगता है कि जो भी बाबा के जो भी मेन वो है, इसको मैं जल्दी से जल्दी घुमा दूं। अभी मेहराबाद का टिकट था तो वो तो खैर कैंसिल करना पड़ रहा है, तो ऑल इज वेल की जो भी है वो वही करेंगे। एक्चुअली ये है ना, किसी बाबा प्रेमी का ही सोल जो होगा, सब यही बोलते हैं। डेफिनेटली अंकल, आप अगर मैं आपको फोटो भेजूंगा ना, तो मैक्सिमम लोग तो बोलते हैं कि मेरे से इसकी शक्ल बहुत मिलती है, बहुत ज्यादा। तो ये सब कोइंसिडेंटली सब बाबा की सब वेल है, सब बाबा करते जा रहे हैं, हम लोग सब वो करते जा रहे हैं अंकल। सही बात है। इसी तरह हमारा जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बाबा से वो डे बाय डे बढ़ रहा है। बाबा ने कभी कभी दामन उनका छूटे, ऐसा सोच रहे हैं हमारा अंकल। और मैं यही चाहे। और सबसे बड़ी बात अंकल, जो मेरे जो मन में, मैं एक बात बताता हूँ, मैं जो बाबा के कनेक्शन में जब मेरी एज 26 या 25 थी तब मैं आया, तो मुझे लगता था मेरा बच्चा हो वो, मतलब डे 1 से बाबा का कनेक्शन उसके साथ होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि ये उत्तराखंड में, देहरादून में हुई, तो वो बाबा का अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है ही है। सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे उसको लिया और सीधे मेहरधाम उसको लेकर दर्शन कराया। देखिए, हम कहते हैं ना कि इसने उसका नमक खाया है, इसने ये किया है, वो किया है। तुम्हारी अमायरा ने वो देहरादून का दूध पिया है। सेंटर का बाबा की। हाँ, इट इज दैट इम्पोर्टेंट, इट इज दैट इम्पोर्टेंट। इसमें से मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। आई डोंट नो, आप लोग अगर जानते होंगे,
डॉक्टर श्रीवास्तव करके है, मेराबाद में रहते हैं अभी। गोकरण गोकुल अंकल श्रीवास्तव। गोकरण जी, गोकरण जानते हैं अच्छे से। अच्छे से जानते हैं वो हाँ अंकल उनकी। सहवास में आते थे स्पीच देने अंकल वो। हाँ जी, सहवास में गेस्ट स्पीकर बन के बहुत बार आए हैं। हाँ करेक्ट, बड़े ज्ञानी है वो, बड़े Yes. ज्ञानी है। जी उनकी उनकी स्टोरी ये थी कि जब वो बहुत जवान थे जी तब उनकी कोई एनसीसी कैंप लगी थी। ये स्टोरी आपने सुनी है? नहीं। नहीं नहीं अंकल। नहीं। And that NCC camp was near Mehrazad. Coincidentally, बिल्कुल coincidentally ये उनकी जो कैंप थी वो मेहराजाद में लगी हुई थी। और बचपन से ही उनको खाना खाते समय उनको ज़्यादा नमक की खाने की जरूरत आदत है। तो वहाँ गए थे और जब उनको खाना पिरोसा गया तो उनको ही डिड नॉट फाइंड एनी एक्स्ट्रा सॉल्ट। तो उन्होंने यहाँ वहाँ सबको पूछा तो बोला यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, आप जाओ कहीं तुम्हें ढूंढना है तो ढूंढो। तो वो ढूंढते ढूंढते ही केम टू अपने मेहराजाद जी और वहाँ का दरवाजा खटखटा के वहाँ से थोड़ा नमक मांगा था उन्होंने। एंड इट वाज, नमक दिया उन लोगों ने एंड इट वाज फॉरगॉटन। बट ये जो नमक खाया था उसकी फ्रूक्टिफिकेशन इतने सालों बाद इनकी हो गई। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ में आया आपको? जी अंकल जी जी। अंकल जी जी। हाँ, चलो अभी कोई एक अच्छा और एक भजन या गाना कुछ हो जाए। ओके अंकल। आप भी गाते हो कि नहीं बलंदर? अंकल मैं गाता नहीं हूँ अंकल, इनका साथ दे देता हूँ, पीछे से गा नहीं पाता हूँ मैं। हाँ अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। भरोसा कर तुम्हें हर पल, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तुम्हें हर पल, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तुम्हें हर पल, तुझे धोखा नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। खुशी में ही बिता डालो, बिताने की ये माया है। खुशी में ही बिता डालो, बिताने की ये माया है। भरोसा कर तुम्हें हर पल, तुझे धोखा नहीं होगा। कहाँ में हर कहाँ तू है, कभी तो सोच ए बंदे। कहाँ
झुका कर शीश को कह दे, झुका कर शीश को कह दे, प्रभु में हर, प्रभु में हर भरोसा कर, तुम्हें हर पल, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। जय बाबा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। किसकी रचना है ये? Who has composed this? अंकल रचना तो मुझे नहीं पता, पर आई हर्ड पीपल सिंगिंग, तो आई लाइक दिस सो मच, आई आल्सो स्टार्टेड सिंगिंग द सेम वेरी सॉन्ग। नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे देखिए, ये चैट में देयर इज अ लेडी कॉल अर्चना ग्रोवर, उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज भेजा है आप लोगों के लिए जी। She says, love your faith and love for our compassionate father, beloved Meher Baba. जय बाबा। Amira is truly blessed to be nurtured in such a beautiful environment. Jai Meher Baba. This is very touching. This is so touching that Amira is truly blessed to be nurtured in such a beautiful environment. ये बहुत गर्व की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि बाबा किसी आत्मा को तुम्हें सौंपते हैं टू टेक केयर। अंकल यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, जी ये जो बोलिए। हमारा है, एक्चुअली जो बच्चे होते हैं उनका रेफरल जाता है, तो हमसे पहले 2 पेरेंट्स की और वेटिंग थी, वन वाज फ्रॉम बेंगलुरु, तो बैंगलोर कॉल गया अमायरा के लिए पेरेंट्स को, पहले प्रोफाइल भेजा गया, मैसेज गया, दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड, फिर एजेंसी की तरफ से कॉल किया गया, तो उन्होंने बोला कि ड्यू टू लॉकडाउन वी आर नॉट एबल टू कम, तो वहां से इनका कैंसिलेशन आ गया। और अंकल एक जगह और था, मुझे याद नहीं आ रहा, इट वाज असम और केरला, समवेयर इन साउथ, वहां पे भी इनका गया, तो उन्होंने बस फोन उठाया और बोला कि अब हमको बेबी नहीं चाहिए, so that both the parents refused for her, और we were the third parents जिनका कॉल आया मायरा के लिए, and it was Baba's will for her and for us to be together. बस बाबा चाहते थे कि ये हमारे पास आए, हमें ये मिले, बाबा फैमिली में आए, इसलिए बाबा ने शायद इनको 2 जगह से इनका रिजेक्शन हुआ और फाइनली यहाँ पर भी आ गई। आप लोग दिलमेर भरूचा को जानते हैं? दिलमेर पूना में रहती है, डॉक्टर होशंग भरूचा की डॉटर। जी अंकल, बाय फेस जानते हैं। हाँ, ये डॉक्टर भरूचा जो थे, डॉक्टर होशंग भरूचा, जी अंकल, उनकी शादी होने के बाद वो बाबा से मिलने गए थे जी, और फिर दे वेंट फॉर हनीमून एंड दे केम बैक एंड दे मेट बाबा अगेन एंड ये वो। तो बाबा ने पूछा था कि भाई तुम लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहते हो, व्हाट अबाउट द बेबी, चाइल्ड कभी लाओगे? जी अंकल। वो भरूचा ने बोला, बाबा अभी वेयर इज द हरी, हम लोग जरा अपने आप को अच्छी तरह से जाने पहचाने, घूमे फिरे, फिर बच्चा आ जाएगा तो फिर तो ये सब झंझटबाजी शुरू हो जाएगी। जी अंकल। तब बाबा ने कहा कि आई एम वेटिंग टू ब्रिंग डाउन अ गुड सोल इन योर केयर, यानी कि ऊपर मेरी किताबों में से एक बच्ची है जिसको मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, सो डोंट वेस्ट टाइम, गेट बिजी विद हैविंग अ चाइल्ड। एंड देन दिलमेर वाज बोर्न। So, ये कहानी है उनकी, यानी कि
Baba knows everything. Baba knows everything. जी अंकल. और कुछ कहना है? हाँ अंकल, और हाँ बोलिए, अंकल अंकल करो मत, जल्दी बोलो. हाँ अंकल, जब हम हमारा को लेके आए तो पहले इनकी मतलब जब देहरादून से चले तो पहले इनकी दीदी का घर है नोएडा में, हम उसे वहां लेके गए। तो जो इनकी दीदी का बेटा और हमारी जो इनकी बड़ी दीदी उनकी बेटी, उन लोगों ने इसका इतना अच्छा अरेंज कर रखा था वेलकम के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं आपको कुछ पिक्स सेंड करूंगा। इतना अच्छा वेलकम मैं ये मानता हूँ कि शायद मेरा अपना बेबी होता तो उसको इतना अच्छा नहीं मिलता। उसके बाद मैं जब हमारा को लेके फिर हम देहरादून से मतलब नोएडा से लखनऊ अपने 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 घर पे आए। तो सबसे पहले तो जैसे हमने लखनऊ में एंटर किया, पहले बाबा के सेंटर लेके गया उसको, वहाँ पे दर्शन कराया। संजय दुबे अंकल को, संजय दुबे जी को आप जानते होंगे, वहाँ पे वो लोग मिले, प्रसाद वसाद चढ़ाया। फिर मेरा जो मैं जो कि जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा 2 मकान छोड़ के मेरे नाना जी का घर है, मेरे मामा का। तो बहुत सारे बच्चे हमारे मतलब मेरी एज के हैं, थोड़े से छोटे हैं, भतीजे हैं, भतीजी सब हैं। तो उन लोगों ने हमें बताया ही नहीं, और हमारा घर भी बंद था, हमारे एक टेरेंट रहते, खाली वो डोर उनके थ्रू डोर ओपन था। तो बार बार वो हमसे टाइम पूछ रहे थे, आप कितनी देर में पहुंचेंगे, कितने में पहुंचेंगे। तो हम लोगों ने कहा आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच रहे हैं। जब अंकल हम उसको लेके घर पहुंचे हैं, तो मैं आई कांट एक्सप्लेन, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि उसका उन लोगों ने ऐसा वार्म वेलकम किया है कि मतलब शायद ही 100 में किसी एक का होता होगा। शाबाश. अंकल अमायरा मीन्स प्रिंसेस. ओहो, अरे वाह. Yes, yes. Meaning of Amira is princess, and she was greeted just as princess. जैसे कहीं की राजकुमारी आई हो, वैसे उनका मतलब कि फ्लावर पेटल्स पूरे बिछे हुए थे घर में, उस पर ये चल करके आई फूलों पर. एंड इट वाज मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि उनका किस तरीके से वेलकम हुआ. वेरी टचिंग मोमेंट, इट वाज वेरी टचिंग. वी हैड नेवर एक्सपेक्टेड. वाह. मतलब बहुत ही वार्म वेलकम, मतलब हर तरह से उसको, उसके जो पैर जो पहली बार पड़े तो उसको हम लोग क्या वो कलश में रख के उसके पैर के फुटप्रिंट लिए गए, वो एक कपड़े में रख के अभी भी बहुत सेफ जगह रख दिए गए हैं। तो इस तरीके का वेलकम हो अंकल। तो हम मतलब बस यही कह सकते हैं, ऑल हिज विल, बाबा की मर्जी है कि जो भी उसे मिल रहा है सब बाबा उसे बेस्ट से बेस्ट दे रहा है। हम अपने पार से पूरी कोशिश करते हैं कि उसे कोई कमी ना हो, बाकी सब बाबा की मर्जी है। हाँ, मगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहना, उसे बहुत बिगाड़ नहीं देना. वो तो सही है। हाँ, प्रेम जरूर करना है, गिव her ample love, but at the same time Strictness is needed. make sure that she grows up to be a true lover of God. जी अंकल। बस, बाकी कोई झंझट नहीं चाहिए. उसको एजुकेशन जो भी कराना है वो कर, रीत से करते हैं वो करना, लेकिन उसको यही सिखाना कि ईश्वर को प्रेम करे बस. जी जी. हमारी कोशिश रहती है जब ये बेड से पहले जब उठती है, सबसे पहले से बाबा के दर्शन कराते हैं। रात में सोते वक्त हम उसको गोदी में आरती लेके बाबा के दर्शन करा के तब मतलब इसको मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये चीज को समझे कि बाबा ही सब कुछ है। डे वन से जब भी ये समझने के लायक हो जाए, सोचने के लायक हो जाए। अभी भी आप देखिए बाबा बाबा हमेशा क्या करती है, बाबा को देखेगी जय करेगी, फोटो देख लेगी बाबा की जय करेगी। बाकी बाबा जाने आगे क्या होगा, पर कोशिश यही है कि इसे मतलब पूरी तरह से इसको बाबा के उसमें रखें। दूसरी चीज मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कोई छोटा बच्चा, यानी कि ये अमायरा की एज का इन्फेंट हमारी सेंटर पे कोई लेके आता है फर्स्ट टाइम, जी. तो बच्चा अपने आप वो बाबा की जो छवि रखी है वहां पे सीधा चले जाता है अपने आप. नोबडी, द पेरेंट्स डोंट हैव टू टेक, और जाके बाबा बाबा बमा बुम करने लग जाते हैं. तो ये दिस इज माय थिंकिंग कि ये जो पूर्व जन्म के बाबा प्रेमी जो गुजर गए हैं, तो बाबा उनको वापस ये इस युग के बाबा प्रेमियों के फैमिली के अंदर लाके उनको सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाने के रास्ते पे ले जाते हैं. दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील. शायद राइट होगा, रॉन्ग होगा, वो तो मालिक जाने. नहीं, राइट है.
अच्छा, अभी आई वुड लाइक टू कीप इट ओपन टू एनीबडी. किसी को कुछ भी सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं. बलेंद्र को और शिल्पी को जो भी सवाल पूछना है आप लोग तरफ से तो पूछ सकते हैं. Shilpi, I would like to ask, आपने लाइक आपका फर्स्ट लाइक आपने बताया आप 2 साल के थे जब से आपको लाइक पता चला है बाबा का. Not audible, Srishti. वॉइस इज नॉट क्लियर. Voice is not clear. अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी. जी, आपने जैसे बताया आप 2 साल के थे तब से बाबा के बारे में सुना है, तो आपकी कोई स्पेशल लाइक 2 साल बहुत छोटी उम्र होती है, बट व्हाट इज द फर्स्ट कितने साल के थे? वन. जब year. नितिन हमारे घर पे रहने आए थे तो I was 1 year. तो उसके बाद आपकी कोई जब याद रहता है वैसी मेमोरी बाबा की है, आपको कन्विक्शन आया कि ये मतलब बाबा ही सब कुछ है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका? दृष्टि तब तो मैं बहुत ही मतलब मैं कुछ भी नहीं समझती थी, बस अगर सब गा रहे हैं तो आई वुड स्टार्ट सिंगिंग, अगर डांस कर रहे हैं तो मैं डांस करने लगूंगी. जब हम मेहराबाद गए एंड आई वाज इन क्लास 1992, जब वहां हम गए हमने बाबा के दर्शन करे, कई लोगों से मिले डिफरेंट, बाबा का जो वहां का हमने एटमॉस्फेयर देखा, अपने पेरेंट्स का फेथ देखा उनमें, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बाबा की तरफ हम भी मोल्ड होते चले गए. और तब मैं शायद 11 या 12 साल की थी, 12 साल की थी तब मैं. आई वाज 12. ये जो बाबा जो कह रहे हैं ना, न्यू ह्यूमैनिटी विल बी बॉर्न, न्यू ह्यूमैनिटी विल बी बॉर्न. आई थिंक कि ये आपके जनरेशन से ये शुरू हो गया है, आप लोगों के जनरेशन से, कि मतलब you all are so, first of all you love Baba, that is obvious. Secondly, you all are so honest and just अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं बाबा के सहारे. जी अंकल. This is what is required. Some lady called Cherry has raised her hand. सैम अंकल, पायलट चेरी से चेरी हो गई ना. ओके, शाबाश. हाँ, ये तो कॉकपिट में से अभी इधर आ गई. How are you? जय बाबा जय बाबा. एवरीवन. जय बाबा शिल्पी एंड वीरेंद्र कुमार जी. जय बाबा. बहुत अच्छा लगा सुनकर. एंड मैं ना टाइप कर रही थी, मैं पूछना चाह रही थी बार बार कि आप सोनिया मेहर की बहन हो, पर वो हुआ नहीं. फिर मैंने उन्हीं को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दिया, तो वो कहती है हाँ वो मेरी बहन है. हाँ जी वो मेरी दिल्ली में. हाँ, सैम अंकल, वी मस्ट नेक्स्ट गेट सोनिया जी. हर स्टोरी इज आल्सो ट्रूली टचिंग. मतलब सबकी जर्नी टू बाबा इज सच a beautiful journey, na. It's like giving you goosebumps. And Myra's picture and that look of her as an angel, real prasad of Baba. You're so blessed. Thank you, Baba. It's beautiful. Why wait for next time? अभी बुला लो उसकी सिस्टर को. है यहाँ पे, उन्होंने हैंड भी रेज किया है. सोनी, तो आ जाए मैदान में, तो मैदान में आ जाइए. सोनी आप अनम्यूट करिए. जय बाबा अंकल. सोनी सूद फ्रॉम दिल्ली, आइए. जय बाबा अंकल. जय बाबा दानी. This is Soni from Delhi. हाँ जी. And I'm Shilpi's sister. I'm 4 years older to her, and I'm now living in Delhi, working in Delhi. But basically, my roots are also there in Lucknow only. Someday, if you find time, I'll just come to your program, and then we'll talk about Baba and whatever he has done in my life. The experiences have been very, very profound, very beautiful experiences. As today is a program related to Shilpi and Sonu Bhaiya, so I would just say that I have witnessed their journey, and I have witnessed it very, very closely. All the pain, all the turmoil that they have gone through in all these years. She got married just after my marriage. After 8 months of my marriage, she got married. And ever since then, she had been facing a lot of troubles.
but at the same time, they were all the time dedicated and devoted to beloved Baba. And Baba really helped them. And now they are the happiest people, I think, on the planet Earth because they have their angel with them. Baba has chosen the best gem from his treasure and he has given this gem to our family. We are so, so grateful to Baba. So, Uncle, really, we are one of the blessed families that Baba has been so kind to us. Always His grace is there on us. Certain tragedies have struck our family in the very beginning. Our parents, we lost them. But then He always gave us courage. We always looked up to Him. So each and every step, His help was there for all our family. We have another sister. She is the eldest one and her family is also very devoted to Baba. So it's a complete Baba family. All of us are Baba lovers. So we are very grateful that we are in his love net and we only thank him from the bottom of our hearts. And thank you for giving us the opportunity to pour our hearts. Please don't say that. Please don't say that. Thanking me is not required at all. This is all Baba's doing. एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ सोनी, आपने जब कहा कि you have seen them suffer, you have seen them at close quarters when they were going through all their problems, ये वो, जी, तो I just feel prompted to say, ये मेरे खुद का ख्याल है. Please don't quote. I'm not quoting anybody. ये मेरे खुद का ख्याल है जी अंकल, कि जितनी भी वेदना, जितना भी crushing, whatever name you want to call it, that this couple Balendra and Shilpi went through, जी, it was only 10%, or sorry, 20%, 80% was suffered by Baba himself. exactly. बिल्कुल सही कह रहे हैं. This is my thinking. This is my Right. thinking. Absolutely, absolutely, uncle. कहीं You're पे- absolutely right. Now I will go a step ahead and quote Baba. कहीं पे उन्होंने कहा है कि when you become mine, जब तुम मेरे हो जाते हो, I dare not, care not. Right. I dare not, care not. मेरी मजाल नहीं कि मैं तुम्हारी संभाल नहीं करूं. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल. और देखिए, कहना बहुत आसान है, इट इज ट्रू, बट चढ़ाव उतार हर एक की जिंदगी में आते हैं. जी जी. एंड व्हेन इट इज हैपनिंग वी फील के अरे यार हमारे पे ही ये सब आ गया है. भाई it also passes off actually, and Right. गाड़ी आगे चलती रहती है. Somebody else has raised a hand. Yes, Namrata. Namrata. Okay. Please unmute yourself, Namrata. Come in, Namrata. Jai Meher Baba, Sam uncle. Am I audible? हाँ जी, हाँ जी. First of all, I just आपका चेहरा दिखाइए ना आप जरा. please don't ask me because I'm suffering from COVID and typhoid. So my He's unwell, condition uncle. really Doesn't matter. It is not contagious. You just come on. Sam uncle, I just Jai wanted Baba. to say हाँ. Jai Baba. Shilpi and Sonu have been very, very close. They are actually my family. And when they got this angel Amira, so we were really very happy. We all were really very happy, and we just prayed to beloved Baba that he could keep on showering his love and blessing on the entire family, because they are very close to me. As Sonia, whom you all call as Soni, she is my very good friend, and through her only I came in contact with Baba. Wow. I just raised my hand just now because just now you said that whatever we suffer in life, that is 80% which Baba suffers, and 20% is that what we suffer. I feel because maybe Baba wanted me to listen to your words right now, because every moment the kind of pain, the physical pain which he is giving me because of this terrible disease,
And at night, sometimes I feel that my breath is no more, which I have not shared with my family members also, because they will get panic. But I feel as if I'm losing my breath and it can be my last moment. But I feel that Baba is holding on to me, holding. And I'm telling you, 2-3 days back, I just cried in pain. And I said, Baba, why every time me? Because so much of physical pain he has given me by this age, that I feel that as if he has actually chosen me to be his most favorite child. As people keep on telling me that you are his most favorite child, so much of physical strain, and every moment I feel that as if he's taking away my breath. So when I was complaining to him 2-3 days back and I was groaning in pain, after that I felt as if he has taken away my pain, and I felt peace after that. And every moment he is making me realize that whatever you're going through, it's just I'm cutting away your sanskaras. I'm just taking away your more pains which were there in your life. And I just feel that whatever you have said just now, it was Baba who wanted me to listen to it, because every moment is actually becoming too painful. So I just wanted to say that. ये हमेशा होता है in a Baba group's meeting. कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देता है which applies as an answer to somebody else's question. हमेशा होता है ऐसे. And this is also his doing, his work. उनको इनके ये messages पहुंचाने का तरीका यही होता है. That is what I personally feel. Thank you very much, Namrata, and Baba willing, get well soon. जल्दी से आ जाइए और next time come and log into our next Thursday's program and give us the good news that everything is finished and you're hale and hearty. ठीक है? Sure, uncle. बाबा जरूर करेंगे, सच्चे दिल से याद करो. He will help, definitely he will help. One more person, Meher, has raised her hand. हाँ जी. Meher has raised her hand. Meher, okay. Meher, please unmute yourself and talk. Jai Baba. Jai Baba. Sam uncle, I'll tell you, I was even feeling in between very depressed because my husband has now got paralyzed, you know that. Yes. And everything, I leave everything up to Baba. What has to happen? I tell Baba, you take care of him. You do what is right. Because if I say anything, I feel it's not worth it. I always feel, and the way Baba does things, I feel is a big, big difference. Baba does the right thing for everyone, I feel. And for him especially. He's trying to help him what he can do. Baba is teaching him what he can do. Of course. Jai Baba. Jai Meher. Jai Meher Baba. Thank you, Meher. संत कबीर का एक दोहा है which says, पुराण को पार नहीं, वेदा को अंत नहीं, वाणी अपार है, कहाँ चित्त दीजिए. लाखों की एक बात करोड़ की कहूं मैं, ये सभी के सार रूप राम नाम लीजिए. Now I'll explain. पुराण को पार नहीं. There is no end to Puranas, your Hindu scriptures. बहुत है, लिखा पढ़ा बहुत है उसमें. वेदा को अंत नहीं. There is no limitless knowledge written in the Vedas. वाणी अपार है. ये सैम पटेल जैसे भाषण देने वाले बहुत है दुनिया में. वाणी अपार है, कहाँ चित्त दीजिए. Where will you pay your attention to? कहाँ जाओगे, कहाँ भटकोगे, क्या क्या ध्यान करोगे. Then he gives a solution and an answer.
लाखों की एक बात करोड़ की कहूं मैं, ये सभी के सार रूप राम नाम लीजिए. Keep remembering Baba. That is all that we need. That is all that we need. बाबा की याद एक इतनी पावरफुल इज नॉट द वर्ड, एक इतनी कीमती चीज है. इट इज सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट गिवन बाय हिम. बाबा कभी कहते थे कि समटाइम्स आई माई सेल्फ रिपीट माई नेम. ये मेरे नाम में, उनके नाम में इतनी खूबी है कि जब भी उनको मन करता था तो वो खुद मेरे बाबा को याद करके उनका नाम लेते थे, वो खुद. कैन यू इमेजिन? ये कोई सोनी सूद ने वापस लिखा है, थैंक यू डियर हवोवी आंटी, आई एंड माय फैमिली and also my dear friend Namrata are COVID positive. Hope beloved Baba helps us sail through this difficult phase. We should take, ये मेहर ने लिखा है, and we should take Baba's name in whatever we do. Yes, we should. ये Corona is for us to experience His karuna, His mercy, His grace. हम सफर जरूर करते हैं. It is very easy for us to who do not have that disease to say कि हाँ भाई ये जल्दी सब निकल जाएगा. No, the one who goes through it, वो बेचारे, उनका दिल ही जानता है कितना उनको कष्ट होता है, कितनी परेशानी होती है. लेकिन this will also pass. Anamika Chaudhary has raised her hand. बोलिए Anamika. Jai Baba to all of you. Sam sir, I have been listening to you and to Shilpi, Balendra ji, Namrata and Sonu and so many more Baba lovers. And I would actually especially like to tell you that you have a profound voice, Sam sir. And I think only a pure soul and a pure heart can have such a profound voice. So I feel each word that you are speaking is going deep down to my heart, as if there are some sayings of Baba which actually is so appealing. And right now you actually mentioned Kabir Doha. And at the end you said that yes, every form is the form of Baba. And so we are there for Baba and Baba is there for us. Only when Baba is there, I think we can feel composed, and all such mental discomposure, which is actually we are facing nowadays, can be relieved if we take the name of Baba from deep down from our heart. So Sam uncle, yes, you have been speaking and your voice is going deep down to our heart. Thank you so much. Jai Baba. The credit goes to my maker and not me. मैं तो खाली कठपुतली हूँ, नचाने वाले वो है. I've always believed in that. I've always believed in that. हे बाबा, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये जो जैनिस जो ये प्रोग्राम कर रही है, उसके घर में 2 जने कोरोना से जूझ रहे हैं. हाँ, and yet she is spending time and dedicating her efforts towards this program. Somebody else, Neelam Goyal, please come in. बोलिए नीलम जी. Neelam ji, unmute yourself and talk. Hello. हेलो, जय बाबा. जय मेहर.
मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बोलिए। मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ बाबा की, जो मेरी लाइफ में हुई है। जैसे आपने बताया है कि बाबा का नाम स्मरण करने से क्या होता है, ये मेरे जीवन में एक्सपीरियंस हुआ है। जब मैं डिलीवरी टाइम में हॉस्पिटल में गई थी, उस टाइम में मुझे नर्स ने पूछा कि आपको जो इंजेक्शन लगाते हैं एपिड्यूरल, उसके लिए पूछा कि आप इसको लेना चाहते हैं। तो मैंने पूछा ये किसके लिए होता है, तो उन्होंने कहा कि आपको पेन फील नहीं होगा ज्यादा। तो मैंने उस समय बोला कि मुझे तो अभी पेन हो नहीं रहा है, तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ, जब पेन होगा तो मैं ले लूंगी। तो उन्होंने बोला नहीं, ये आप बाद में नहीं ले सकते हैं इसको, तो आप अभी लगा सकते हैं ये इसको। तो मैं बाबा की फोटो अपने साथ डिलीवरी रूम में लेके गई थी। तो वहां पे मैंने बाबा की फोटो बाबा के अपने साइड में रख रखी थी। और जो मुझे पेन होता था इतना, उस समय मैं मेहर बाबा का नाम लेती थी। या खुदा। तो आप यकीन मानिए, बाबा का नाम लेना वो इंजेक्शन का काम कर रहा था। मेरा तुरंत दर्द फिनिश हो जाता था। मैं दोबारा जब होता था दर्द, दोबारा बाबा का नाम लेती थी। और इस तरीके से देखिए, आप मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जीवन में आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आए ना, केवल बाबा का नाम लीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, अपना पेन भी नहीं सोचना है। पेन में भी बाबा का नाम लीजिए और आपको कुछ नहीं होगा, आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे। जय बाबा। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज नीलम जी, थैंक यू वेरी मच। ये हम सभी को बहुत जरूरत थी ये मैसेज की, क्योंकि कभी कभी जय बाबा। ये बाबा कहलवाना चाह रही हूँ कि मुझसे, इसलिए मैं प्रोग्राम देख पाई। शाबाश। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एनीबडी एल्स कोई कुछ कहना चाहता है? ये हमारे यहाँ ग्रुप में देयर इज अ लेडी कॉल हवोवी दादाचंद जी। शी इज अ वेरी सीनियर लेडी, हमारे सेंटर की है। उनको उनका एक भी सेंटेंस बाबा के नाम लिए बगैर कंप्लीट नहीं होता है, और दिन में 500 दफे वो बाबा बाबा याद करते रहती है। कभी गाड़ी में हुए, किसी ने ब्रेक मार दिया तो बाबा, किसी ने रास्ते में बीच में आ गए तो बाबा। That has become a habit which I really admire and appreciate. कि at every step बाबा को याद करते अपना काम करते रहते हैं। शिल्पी जी चलिए कुछ अच्छे आरती करके प्रोग्राम एंड करें, अभी 7 बजने आ रहे हैं। किसी को अगर आप लोग को कुछ और बोलना है तो प्लीज फील फ्री। Uncle, can I say something? हाँ प्लीज। I would like to thank you because I mean, this program that you are hosting every week, every Thursday, is such an amazing thing. Today's session was so beautiful, when so many people came up and shared their like, apart from Sonu and Shilpi, खुद ने आगे आके बाबा ने इतना सारा beautiful messages convey किया है आज। So uncle, thank you to you. अरे नहीं बाबा, don't ever thank you that this program is going on. And yes, like someone said, the way you talk is so amazing and you convey it so beautifully, every message. Thank you, uncle. फोक्स, ये जेनिस को पीने की आदत बहुत है, वो पीने के बाद कुछ भी बरबर करती है। डोंट लिसन टू हर। ये ओके मिस्टर पंचाल, हेलो। हाँ सर, मेहर कुमार पंचाल बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए। कुछ शॉर्ट में बोलना है कुछ आपको तो बोल दीजिए, फिर हम प्रोग्राम बंद करेंगे। बिल्कुल सर, 2 मिनट में ही बोलूंगा सर। हाँ प्लीज गो अहेड। हाँ सर, मैं मुंबई सेंटर में आता हूँ। मेरे पिताजी बाबू भाई पंचाल और उनके फ्रेंड जो है पंडरी साहब थे, उनके साथ मैं रेगुलरली मुंबई सेंटर में आता हूँ। हाँ। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूँ कि मैं जब 4 साल का था तभी मेरी आवाज सडनली चली गई थी।
तो मेरे माँ पिताजी ने अहमदनगर में बाबा मंडली से हेल्प लिया था, और बाबा मंडली से हेल्प लेने के बाद एक मलाड में डॉक्टर हाथी करके एक डॉक्टर थे, उनसे हमारा कंसल्टेशन हुआ, और उसके बाद करीबन 2 साल तक ट्रीटमेंट चली, और 2 साल के बाद फिर मेरा आवाज वापस आ गया है। सो ये जो है मेहर बाबा की जो है कृपा निधि से हुआ है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर। आप गुलाबदास पंचाल के कुछ रिश्ते में हैं? नहीं सर, मैं बाबू भाई पंचाल जो में आते मुंबई सेंट्रल में आते थे, वो पंडरी साहब जो थे उनके फ्रेंड थे मेरे पिताजी। ये जो हमारे पंडरी और ये सब बोले, ये नाम सब, these are all stalwarts. अभी तो वो बाबा के पास चले गए, लेकिन these are all stalwarts of our center. उन्होंने जो बाबा के तरफ सेवाएं दी है, not only just सेवा, that the dedication जो दिखाया है, that पंडरी to sing so beautifully. भी वो ऊपर बजा के बाबा को गाने सुनाते होंगे अपने। Anyway, thank you very much पंचाल जी for sharing this. Yes, जय बाबा सर। जय मेहर बाबा। और किसी और को कुछ भी कहना है very briefly, I don't mind extending, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बाबा का प्रोग्राम है, बाबा इस चलाते हैं। कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है? हाँ जी। I also have a habit. Whatever I do, I go on saying Baba, Baba, help me. Very good, very good. Anything. That is the best. That is the best. इसके सिवाय और कोई बेहतर रास्ता ही नहीं है दुनिया में। चलिए शिल्पी, कौन सी आरती, जो भी आपको मन में आए वो आरती कीजिए। बुझावे नार जेहलत नी कर कुद रत्न परमातु चलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर मातु आया मुर्शिद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात सिवा किस भई बे तो मेहर मातु तुझे माँ लिख हकीकत नो तुम आशिक दीन आरिफ तुझे दरी याए वहीदत मारिफत नो कोई तूफातू हमोरे रब में साले बख्शिज ज्ञान इज़्ज़तनो के तुम पर मात्मा ज्ञानी छिने मुख तारे पातु खुदा ना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझे पर जान सदके साथिया पीरत में मातू हमारी नाम भर करिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहरबान
बाबा छेनिगे बातू हमारा ना खुदाए मेरे बाबा छेनिगे बातू बुझावे नारे गलतनी ए कर कुदरत में परमातू छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर ईमातू। Beloved अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। दोस्तों, ये सारी आरती में से मुझे जो लाइन पसंद है वो हमारी नाव भर दरिए धरावे तो हमें तरिए। हम सब ये जीवन का भवसागर में तैर रहे हैं। हमारा ना खुदा मीन्स द कैप्टन ऑफ द शिप। हमारा ना खुदा क्या है? हमारा ना खुदा मेहर बाबा छे निगह बातू, यानी आप हमारे पे नजर बनाए रखना। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। मुझे एक चीज एज अ पार्टिंग मैसेज एक ही चीज बोलनी है, वो ये कि जब भी हम मेहराबाद जाते थे और नाना खेर समाधि ड्यूटी पे होते थे, तो ऐसे ही विथ अ हैवी हार्ट इफ आई वर टू टेल हिम कि नाना जी अब आज सुबह नाश्ता खाने के बाद हम लोग बम्बई वापस चले जाएंगे, तो वो जोर से आलिंगन करते थे और बोलते थे टेक बाबा विथ यू, टेक बाबा विथ यू। ये उस समय उसकी इतनी वैल्यू हमें समझ में नहीं आती थी कि टेक बाबा विथ यू मीन्स क्या, मगर आज आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ अस हियर कि व्हेन वी फिनिश दिस प्रोग्राम एंड गो आवर ओन इंडिविजुअल वेज, टेक बाबा विथ यू and keep him with you, keep him with you and hold on to his daman with both hands. वो कभी फिसलनी नहीं चाहिए। अवतार मेहर बाबा की जय। Thank you, beloved Baba, for giving this opportunity. Thank you, Uncle. Thank you, Srishti. Thank you all. Jai Baba. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Jai everyone. Baba. Thank you, Jai Baba. Beautiful program. Beautiful. अवतार मेहर बाबा। ठीक है। Shall I end the program? करो करो, बता रहे गपशप मारवा दो। किसी को कुछ बोलना है? चल फिर बंद करते हैं दुकान। Okay. जय बाबा, जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा, Thank जय you very मेहर much. बाबा की Thank जय। you. Thank you, Baba, for everything. Love you, Baba, always. Thank you. Bye-bye. Jai Baba.